नमस्कार टू एवरीवन, माय नेम इज़ अजय कुमार। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यहाँ यूके इंग्लैंड से आपको ये आज लाइव पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। ये हमारा 9वां सत्संग है। I'm doing a live Facebook post here, and it's our 9th satsang. My name is Ajay Kumar, for those of you who know, and this is also on my Facebook page as AJ, just 2 letters, AJ Yoga Satsang. So if you want to follow there, please also follow there, yeah. And in these satsangs, we basically talk about various issues, and today is the 9th satsang. If my voice isn't coming across correctly, can somebody just let me know by typing something? But if you can hear it through the earpods and with the Tanpura playing on the side, please just confirm it's okay. तो अगर कोई दिक्कत हो सुनने में तो प्लीज़ मुझे बता देना लिख के। मगर मैंने आज ये ट्राई कर रहा हूँ ना, ये माइक्रोफोन के थ्रू, तो और ये साथ में तानपुरा बज रहा है, तो आवाज़ अगर सही है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। अगर कुछ गलत नहीं आ रही आपको आवाज़ तो मुझे वो भी बता देना। तो आज का जो सत्संग है, अब मैंने इस विषय के ऊपर रखा था कि सेवा धर्मयुतम। ये एक संस्कृत का शब्द है कि सेवा करना, सेल्फलेस सर्विस is the highest of ways of living. Seva dharma yutam, because dharma is a way of life and yutam means the highest, and seva is service. And if it's selfless service, i.e. to help others, to help the larger family, if you like, वसुदेव कुटुंबकम, तो इसमें होता है कि सेवा किसकी करनी है। सेवा धर्म जो हमेशा जो आपका एक जीने की जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें क्या करना है, ये धर्म है। तो हमें कैसे जीना चाहिए। और युतम होता है जो सबसे उच्च चीज है, उसमें सेवा है। तो जब हम इस श्लोक को लेते हैं सेवा धर्म युतम, तो सेल्फलेस सर्विस जो है वो सबसे उत्तम चीज है जो आप कर सकते हैं। सो द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस इज सेल्फलेस सर्विस, यस, service to others and to your greater family, what we call Vasudeva Kutumbakam, i.e. the whole world is one big family. हम बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंब, ये सारी जो सृष्टि है, ये सारा हमारा हम कुटुंब है, एक परिवार है। तो इस सोच के साथ, और 2 वीडियोस मैंने आपको भेजे थे देखने के लिए। अगर आपने देखे तो बहुत अच्छा है, 2-4 मिनट के वीडियो थे। अगर नहीं देखे उनको मैं पहले समझाऊंगा। And I sent 2 4-minute videos for you to look at today. One was an example of giving or serving others, and one and actually to an extreme, and the other one was not willing to serve others. Okay, and if you've watched those, then it's good because you'll understand. If you haven't watched those, I will explain those first. तो जो पहली वीडियो थी, जो भी आपने जिस ऑर्डर में भी देखा होगा, एक तो था कि एक व्यक्ति है, वो इंडिया में काफ़ी वीडियोस बनाता है। So there's a person in India who makes these videos about any kind of social issues and so on. And तो उस व्यक्ति की जो वीडियो थी, मुझे वो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि मुझे दुख हुआ देख के कि उसने ड्रामा किया कि जैसे मुझे चोट लग गई और मैं रोड के ऊपर हूँ और मुझे चोट लगी, खून निकल रहा है और मेरी सहायता कोई करे। So basically this guy who makes these videos highlighting various social issues in India, and I was very moved by this video because it was about him pretending as if he was hurt in a road accident, and there was blood coming out. So this was all a drama, but he wanted to see the people's reactions. तो वो लोगों के देख रहा था कि कौन मेरी मदद करेगा। एम्बुलेंस भी चले गई, वो भी नहीं रुकी, अनेकों लोग आसपास इकट्ठे हो गए, मगर किसने उसकी मदद नहीं की, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। So even an ambulance drove by, it didn't stop for this person, and all the people just gathered around, some people with their phones recording it, but no one was actually helping him. Now, I was very disturbed when I saw this because it highlighted a huge issue in India, and that is people are very reluctant to come forward and help.
And the way I think is, I always like to know what the root cause is why people don't help. तो इसमें क्या था, मुझे काफी मैं प्रभावित हुआ और मुझे दुख हुआ कि लोग आगे क्यों आके उसकी मदद नहीं करते। मगर मैं केवल उसको इस दृष्टि से नहीं देखता कि लोग मदद नहीं कर रहे, मगर वो क्यों मदद नहीं कर रहे उसको देखना भी बहुत आवश्यक है, ताकि आप समझ सके कि मानसिकता क्या है लोगों की। So it's important to understand the mindset of people, and what I've understood is that the corruption in India is so bad, especially from the police services, that if you help someone who's been involved in an accident, most of the time they trap you and they extract money out of you and they give you a very hard time. So this is why people are unwilling to help others. That is, I feel, the predominant reason why people don't help. तो जो प्रमुख कारण मैंने समझा वो ये है कि भारत में ना जो पुलिस है, ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत भ्रष्ट है और वो आपको फंसा देती है कि ये देखो आपने उसको बंदे की मदद की मगर शायद आप ही जिम्मेदार हो, तो हम आपसे पैसा निकलवाएं, आपको तंग करेंगे, आपको जेल में डालेंगे। तो इसीलिए लोग ज्यादातर नहीं मदद करते। तो ये पहला वीडियो था और इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अगर कोई ऐसा बंदा है, किसी को जानता है, इस वीडियो को फॉरवर्ड करे, शेयर करे और लोगों को समझाएं कि ये पॉलिटिशियन तक जाए। चाहे आप अपनी अपनी वीडियो बना के भेजो कि हमें कानून में तब्दीली चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए, ताकि हम लोगों की मदद भी कर सके और हमें इसका इनाम भी मिले ताकि लोग आगे आए। क्योंकि यही तो इंसानियत है मेरे भाइयों बहनों। अगर आप लोगों की मदद ही नहीं करेंगे, ये तो इसका मतलब तो देश ने तो कोई तरक्की नहीं फिर की। अगर आप जो लोग अगर वो परेशानी में है, उनको एक्सीडेंट हुआ है या उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, आप उनकी अगर मदद नहीं करोगे तो आप अपने कानून में एक बदलाव लेके आओ ताकि जो मदद करेगा उसको बल्कि इनाम भी मिलेगा और आप उसको प्रोत्साहित करोगे समाज को। तो ये कानून का जो ये एक बहुत जरूरी जो एक परिवर्तन की जरूरी है। मेरी इस वीडियो को काट के इतना ही आप चाहे शेयर कर दो सारी दुनिया में, आई डोंट केयर, मगर ये है कि कुछ करो। So what I noticed was that because these people were not helping, sorry, I have to explain in both Hindi and English because that's the whole purpose of these videos. So then I say, try and contact whoever's watching. If there are people who have political connections or people who know people in big places, I would say, come on, do something about this. Bring a change in the law so that your society becomes a more caring society, and the people who come forward to help, not only are they rewarded financially, but they're highlighted as heroes. This is what needs to happen, and you need to make this change immediately, because otherwise you're creating society which is an uncaring society and a corrupt society, and this is not at all the sign of a developing or even certainly not a developed nation, but even a developing nation. तो अपने देश की उन्नति के लिए हमें ये काम करना चाहिए। So for the upliftment of our society and our people and our country, we should be doing this. Okay. So anyway, that was one example. The other example, the other video was of a person who, it was a very extreme example, but where the person decided to give up his own life and help someone because he said that he just needs about a couple of hundred rupees to go from one place to another for a job interview that he'd been waiting for years. And he comes to this very poor beggar who is outside a temple, and the beggar gives him his money saying that take this, don't worry, come back again some other time and give it back to me. But no one else helped. His own friend didn't help who lived opposite him in his flats nearby. Okay? तो दूसरी जो वीडियो है उसमें क्या था, वो एक और ही एक्सट्रीम था। जैसे यहाँ पर तो कोई मदद नहीं कर रहा, वो एक बाबा ने एक बहुत भिखारी, एक गरीब आदमी जो मंदिर के बाहर लेटा हुआ था, तो उसको लोग पैसे देते थे ना। तो वहां जब वो गया, अब वो परेशान था क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था। ये दूसरी वीडियो थी। तो वहां से उसको एक बस लेनी थी या कुछ भी, उसको 200 रुपए कुछ चाहिए थे, नहीं तो वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता। और वो कितने देर से उस इंटरव्यू की खोज कर रहा था कि मुझे वो मिल जाए, मुझे जॉब वो मिल जाए। तो वो जो बाबा है ना, उसने जब उसकी बात ये सुनी तो उसने अपने पैसे जो उसने उसकी कटोरी में थे उसको दे दिए और कह दिया तुम वापस आ जाना, मुझे दे देना। मगर अफसोस वो जो पैसे थे वो उसके ऊपर निर्भर था कि मुझे उससे दवाई खरीदनी है हर दिन और फिर उस दवाई से मैं अपने आप को जिंदा रखूं।
और अगले दिन वो मरा हुआ पाया। So basically what happened was that person, that beggar who gave him his money, was actually reliant on that money, but he didn't say it to the person who needed the money. Because he was reliant on that money because he needed it for his daily medication in order to keep alive. And the next day that man comes back to see him and give him the good news, I've got the job by the way, he's dead. सेवा धर्मयुतम, है ना। तो ये हमें जो जोड़ने के लिए आपको, इट्स टू मूव यू, दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर टू मूव यू, जो जोड़ देते हैं ये हमें, ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। और उस जो दूसरा वीडियो था उसमें तो उसके दोस्त ने भी उसकी मदद नहीं की, मगर उसको वो इंटरव्यू के जरिए उसको वो नौकरी मिल जाती है। जब दूसरे दिन वो जाता है, वो बेचारा जो गरीब था जिसने उसको पैसे दिए वो मरा हुआ होता है। तो वहां पर भी लोगों की जो एटीट्यूड होती है कि ये मर गया है, को रहने दो, जाओ, वो भी गलत है। तो ये केयरिंग नेचर जो है, ये करुणा भाव जो है, ये कैसे आएगा? सो हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट दिस केयरिंग नेचर, दिस करुणा, वी कॉल इट करुणा भाव, because that is the sign of humanity. That is the sign when you're able to give. Like I'm giving my knowledge of yoga or these satsangs away because I believe in giving what I feel is precious to me and I'm sharing it. In the same way, we can give in many different ways. It doesn't have to be money-wise always. तो देने को अपने जीवन में देना सीखो। जैसे मैं अपने सोच ये रखता हूँ कि मैंने जो ये योग सीखा है, जो ये सत्संग है, जो कुछ भी विचार है, मैं इसको दुनिया के साथ बांटूं, तो देना सीखो। और वो ऊपर वाला जो है ना, वो अपने आप आपको और देता है। आप ये दोगे, आपको और मिलेगा, फिर आप और दे पाओगे। You give this away, tomorrow you gain even more and you'll be able to give away even more. You see this, and this is what creates the karuna bhav inside you. This is what starts purifying your antakaran inside you, your inner soul. Soul is always pure, but your inner spirit gets purified. तो आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। By giving, we are purifying ourselves. But how to give, whom to give, where to give, you need to always research that, because you shouldn't just give nilly-willy. Because even in the Bhagavad Gita it's saying that you must make sure that to whom you are giving is deserving of that. So you do need to do some research. You shouldn't just instantly give. But sometimes you have to follow your gut and just help someone. Like he went to his neighbor and asked for money. His neighbor knows him. He knows if he's only genuinely asking and he's only asking for a few hundred rupees, why wouldn't he give? So जो देना भी होता है वो भी आपको, ये भगवद गीता में भी लिखा है कि आपको खोज करनी चाहिए कि वो जो जिसको आप दे रहे हो वो उसको उसकी जरूरत भी है, वो सही इस्तेमाल भी होगा पैसा। तो हाँ, जब आप एक ज्यादा मात्रा में दोगे या किसी संस्था को हेल्प करोगे, आपको देखना तो ये सब कुछ चाहिए, क्या वो इसका पात्र है लेने का। मगर जब वहां पर अपने दोस्त को मिलने गया, एक छोटी सी रकम है, वो तो उसको जानता था, उसने भी नहीं दिया। तो ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि ये जीवन जो है ना, इसमें हम अपने अंतःकरण को, ये योग का ही हिस्सा है, इस अंतःकरण को शुद्ध करना है। और अपनी करुणा भाव को जब आप बढ़ाएंगे ना, उसको इंक्रीज करेंगे, तब ही आप उस परमेश्वर परमात्मा जिस स्वरूप में भी आप उसको मानते हैं, तभी वो आपके और नजदीक आएंगे। सो बाय क्रिएटिंग दिस sense of giving and purifying our inner core, this is how we get closer to Bhagavan. This is part of yoga. It's that purification. That purification of the mind and the heart becomes wider. Yeah? Is anahat chakra ka kholo. Open this heart chakra. It's very important that we learn to give selflessly. And there's a saying that if you give with one hand, the other hand should not know. So this is actually a very beautiful saying, that it's like, don't be like egoistic and don't be like proud of yourself that you've given. Give with humility, and don't even you give with one hand, but don't even let the other hand know that you're giving. It's that kind of a philosophy that you should follow. कहते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। क्यों? ताकि आपके अंदर वो अहंकार ना आए कि मैं दे रहा हूं। ना, ये नहीं। देना है
तो उस एक निम्रता के साथ दो, विद दिस ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। I will tell you of one incident where I was very, very touched by what I saw. And it moved me so much. I was with my family in India, and I just walked ahead a little bit from them. They're all walking together, and I just walked a little bit further ahead, and I saw this leper on the side who was in this blanket and bleeding. And honestly, I just fell to my knees. And I had a blanket, I gave him, and I just started crying out loud. And I didn't want my family to see, so I went behind some trees and just stood there and started crying. It was just, it's one of those moments that this, we dream so much and we create such big dreams. We lift ourselves up in our head so much that we want to do this, we want to do that, we want to do that. But we don't try and lift our own humanity. And that's more important to do, because that's the only thing that will go with you. None of this wealth, nothing will go with you. I'm not saying don't make money, I'm not saying don't have businesses, don't be prosperous, yes, but learn to give. तो एक वाक्य है जो मैं जब एक टाइम भारत में था, ये बहुत पुरानी बात है, कोई लगभग 25 साल पुरानी होगी। तो आगे परिवार के साथ हम चल रहे थे और मैं थोड़ा सा आगे चल रहा था, और वहाँ पर एक बंदा कोढ़ी था, और उससे जो ऊपर डाला हुआ था, जो कंबल डाला हुआ था, उसमें से खून, वो जमा हुआ खून दिख रहा था मुझे। तो मैं बस वहाँ पर ही अपने घुटनों पर गिर गया और फूट फूट के रोने लग गया। और अपना जो कंबल था, मेरे पास भी कंबल था, मैंने वो क्योंकि थोड़ी सर्दी का टाइम था, ऐसे कुछ था, तो मैंने उसको दे दिया। और फिर क्योंकि मैं अपने परिवार नहीं ना चाहता था कि मेरा परिवार मुझे देखे कि मैं रो रहा हूँ। मैं वृक्षों के पीछे जाके खड़ा हो गया, वहाँ पर खूब रोया। तो हम अपने मानसिक स्थिति पे अंदर, हम अपने मन में बहुत कुछ सोचते हैं, हमने क्या क्या करना है, अपने ये बनाना है, वो बनाना है, ऊंचे से ऊंचे सोच और ख्यालात रखते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मगर उस चीज को भी खड़ा करो ना अपने अंदर, उस इंसानियत को भी। महल तो आप अपने ना जाने मन के अंदर कितने बड़े बड़े खड़े कर देते हो, मगर इंसानियत को खड़े करो ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। हम इस जीवन में कुछ करके करें और कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि आपको कोई याद करे। तो ये मेरा थोड़ा सा सत्संग के यही विषय थे कि धर्म में सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हमारा जो आचरण होता है वो परम धर्म, उसको भी कहते हैं ना आचरण। जो हमारा आचरण है, कैसे हम बिहेव करते हैं, ये हमारे बिहेवियर में ही आ जाता है। आचरण परम धर्म है ना, वो भी कि आप कैसे बिहेव करते हो, ये बिहेव करने का यही तो आपकी इंसानियत दिखाएगा। सो इन आवर dharma we say that yes, selfless service is seva dharma as per this diktat, but your acharan, the way you behave, is paramo dharma as well, as in the way you behave, and that this is a reflection, your humanity is a reflection of how you behave. So it's very important that everybody brings about these changes. And when I'm teaching you yoga, I'm teaching you pranayamas, but it's a much bigger philosophy that encompasses the pranayamas and the yoga. So this is the beauty of yoga. तो जब हम प्राणायाम भी सिखाते हैं आपको, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ये सब योग के हिस्से हैं कि हम अपने आप को असल में कैसे परिवर्तित करें, ताकि हम उस परमात्मा से वो युक्त हो जाएं, हम जुड़ जाएं। वो हम तभी जुड़ेंगे पहले जब हम अपने आप से अंदर अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, जब हम औरों के साथ जुड़ सके, तभी हम सभी में उस परमात्मा को देखें। When we see Bhagavan, when we see God in everything, and we feel other people's pain and grief, this is very important. दूसरे के दर्द को समझो, उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ऐसे ही कोरोना के मामले में मैंने कई स्टोरी सुनी है। यहाँ यूके में भी
कई लेवल पर बहुत बुरा है कि जैसे लोगों के साथ व्यवहार होता है, मगर जो लोग फ्रंट लाइन पे जिनकी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों की देखभाल करनी, उनकी सेवा करनी है, हॉस्पिटल में आते जो नर्सेज होते हैं, ये वो लोग अगर वही मुख मोड़ लेंगे तो वहाँ इंसानियत कहाँ है। बहुत से नर्सेज डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, मुझे पता, मगर ऐसी भी चीज़ें निकल के आती है कि हॉस्पिटल में लोग बीमार पड़े हुए हैं, कोरोना से उनको पानी चाहिए, उनको ये चाहिए, सांस नहीं आ रहा, मगर वो मदद नहीं करे। तो आप ये क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अपने shake yourself and realize that if you're in the frontline staff, you're in the caring industry, in the healthcare industry, how can you neglect people? How can you not give them water if they need water? They're the corona sufferers, they're suffering, they need this attention, they need that. If you are in that situation to help, how can you look away? And there are so many doctors and nurses doing such wonderful things, but you also hear of these horror stories, and this is so unfortunate. इसलिए कई लोग तो हॉस्पिटलों में जाते ही नहीं, वो घर में ही वो सारा अपना बंदोबस्त कर लेते हैं कि उनको पता है हम कम से कम ये वाला काढ़ा पी सकते, ये वाला पानी गरम गरम पी सकते, ये कर सकते, वो करते, अपने आप को वो दे सकते, ये दवाई दे सकते। वो घर में ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर। कितने लोग, मैंने कईयों से ये सुना है कि मैं जानबूझ के हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर ना जाने क्या हो जाएगा। So I've heard from so many people that they've deliberately not gone to the hospital because they know that it's like a nightmare there. Not because they want it to be that way, but it's been created that way because of the very bad situation. And therefore they avoid going there because they know at least at home they can prepare their warm drinks and they can have this and they can do their steaming and they can do that and they can do a bit of walking and they just try and help themselves out through this situation. It's just a very sad and very unfortunate situation. बहुत ही दुखदायक और ये गंभीर मामले हैं और जितनी जल्दी हम इस समस्या से बाहर निकलें, मगर अपने आप को ठीक करो। कैसे? मानसिक स्थिति पर ठीक करो। कैसे आप दुनिया के बारे में सोचते, औरों के बारे में सोचते हैं, उसमें अपने दया भाव लेके ये जरूरी। Bring compassion into your lives. Think about the suffering of others and think about helping or contributing in whatever way. It doesn't have to always be financially. हमेशा पैसे से ही नहीं मदद होती। आप कई तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ करो। ये योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये हमारे यम और नियमों में आता है। This is a very big part of the Ashtanga Yoga, the yams and niyams, what I'm trying to convince you to do. Our conduct and the rules of living, simple living. तो ये 2 वीडियो थे और मैंने यही इसमें से निचोड़ निकाला। So these were the 2 videos that I wanted you to see before this satsang, and this is what I've extracted from the videos. And everybody obviously extracts their own meanings from things, that's fine, but it's sometimes important just to look at things from a different angle, from a different point of view. And for me, I've always understood that giving is a necessity, a very big part, should be a very big part of your lifestyle. कि लोगों को देना, मदद करनी लोगों की, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यही हमें भगवान से ज्यादा जोड़ता है, अपने समाज से और इंसानियत से। तभी आप और उन्नति कर पाओगे। Only then will you progress even more by helping others, and you will develop as a person a better personality and a more powerful personality. Selfishness does not take us anywhere. Selfish people are not remembered on this earth after they pass away. Only those who have done something are remembered. जो स्वयं के लिए करते हैं उनको कोई याद नहीं करता। जिन्होंने कुछ दुनिया के लिए, औरों के लिए कुछ किया, उन्हीं को तो कोई याद करेगा। और हमने कितने साल जीना है, आपने क्या लेके जाना है ना? What are you going to take with you? Absolutely nothing.
How long are we all going to live? 80 years, 90 years, if that. तो आज अंत में, in the end now, I always sing a bhajan, but today I'm not going to sing a bhajan. मैं हमेशा भजन गाता हूँ अंत में। आज मैं एक ऐसा गीत गाऊंगा जो मेरे अपने बचपन का गीत है, कह सकते हो, क्योंकि मेरा जन्म अर्ली 70s का है, तो अमिताभ बच्चन उसकी मूवीज का काफी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। So I was born in the early 70s, and Amitabh Bachchan, I'm going to sing one of his filmy songs, but it's one beautiful one because it's a very philosophical song. Yeah? मुकद्दर का सिकंदर से। तो अब मैं तानपुरे को थोड़ा और ऊंचा करता हूँ, आप सुनो। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमान। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमान। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। हाज़े गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो सिकंदर
वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। That, dear folks, is the end of the satsang. प्यारे भाइयों और बहनों, ये सत्संग का एंड है। और मैं अंत में बस यही कहूंगा, 2-3 चीजें छोटी सी। पहली, कानून में परिवर्तन लेके आओ भारत में। ये वीडियो को अगर आप किसी तक भी पहुंचा दो, उनको कहो कि ऐसा कानून बनाए कि लोग आगे आके मदद करें, उनको इनाम मिले, उनको सम्मान दिया जाए, ताकि देश में एक इंसानियत की लहर चल पड़े। Bring about a change in the law so that people will help those who are hurt in an accident, whatever, and not only encourage them to help people, reward them and then highlight them as heroes. Okay, very important. Second thing, bring about small changes in giving your knowledge, like I'm giving my yoga knowledge, whatever knowledge I have, away. Give it away. Help people financially, help people in whatever little way you can, but help. तो थोड़े से तरीके, छोटे से तरीके से भी देना सीखो। ये दूसरी चीज। अपने ज्ञान को बांटो, अपनी सोच को बांटो, अपने पैसे को अच्छे जगह पर लगाओ, लोगों की मदद करो और धर्म के लिए काम करो। ये 2 छोटी सी चीजें हैं। ये दूसरी चीज से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। By doing the giving in a selfless way, you will purify yourselves and you will become a great practitioner of yoga. योग के आप असल में एक शिक्षक, एक बहुत अच्छे शिक्षक बन जाओगे।